Hello students, how are you? In previous videos, we have studied about the angiospermic plant, their characteristics as well as the sexual life cycle. Here in this video, we will study about the plant life cycle and the alternation of generation. Plant life cycle, it means what the various stages occurs in the lifespan of the plant and how these phases alternate with each other in a generation. Is it clear? Here we can see in the plants both the haploid and the diploid cells can be divided by the mitosis. First we will read it, then I will clear your concept. Clear? In plants both haploid and diploid cells can be divided by the mitosis. It means plants have the haploid and diploid cells. Haploid means having the single nucleus. It means the half number of the chromosomes, and diploid cells means having the full number of chromosomes. Clear? And both have the ability to divide by the mitosis. Clear? Next, here haploid body undergoes in mitosis division. Here, carefully listen the word. Here haploid body undergoes in the mitosis division and produces the gametes. And this plant body represents a gametophytic stage or gametophyte. See here, the plant body is already haploid. It means the number of chromosome is half. If again meiosis, I am not talking about the mitosis, I am talking about the meiosis. If again meiosis takes place in the haploid body, so the number of chromosomes becomes 1/4. So the species have the inability to maintain its chromosomal level. Clear? So this haploid body undergoes in the mitosis division, and the result that is produced after the mitosis division is called the gametes, and this stage of the gamete called the gametophyte. Clear? And what will happen? This is the gamete. Suppose this is the male gamete, and same another will be the female gamete. When these both gametes fuses with each other, they will form the zygote. Clear? Suppose this is the nucleus. It is called the N condition. And we have marked it the male, and this is the female gamete. It is also N in condition, and we mark is the positive. Positive is the signal of female or sign of the female. Clear? This is the gamete A and this is the gamete B. Both are formed by the mitotic division. Clear? When they will fuses with each other, so here the nucleus is the 2. Clear? So this condition is called the 2N condition. So this is the gametophytic stage, this is the gametophytic stage, and this is the sporophytic stage. It means sporophytic stage always in the 2N condition or the diploid condition. Clear? Okay. After fertilization, zygote divides by the mitosis. Why by the mitosis? Because they form the whole body. So with the help of mitosis division, they convert into the sporophyte. But this sporophyte always be diploid. Why? Because one N from the male and one N for the female.
they fuses with each other and they form the diploid body, and this diploid body again divide the by the mitosis division, and it forms the sporophyte plant body. Clear? And now this sporophyte plant will divide by the meiosis. पहला डिवीजन कैसा होता? माइटोसिस। माइटोसिस से क्या हुआ? एक पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर? अब उस बॉडी में क्या होगा? कोई भी एक सेल जो स्पोरोफाइट का था वो क्या करेगा? मियोसिस डिवीजन करेगा। और मियोसिस मैंने बताया अब यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? सपोज कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इसके पास क्रोमोसोम की संख्या टोटल इस स्पीसीज में कितनी है? 16। क्लियर? तो 16 इज द 2n कंडीशन। अब यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन होने के बाद क्या होगा? ये पूरा होल बॉडी में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें से किसी एक सेल में, अब यही मान लो वो सेल है, अब इसमें क्या होगा? मियोसिस डिवीजन होगा। सो मियोसिस डिवीजन में क्या होगा? अब हम पढ़ेंगे आगे। मियोसिस डिवीजन में एक न्यूक्लियस से या एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होता है पहले, और यहाँ पर क्रोमोसोम्स का नंबर आधा हो जाता है। तो अगर यहाँ 16 क्रोमोसोम होगा, इट मीन्स इट हैव द 8 क्रोमोसोम एंड इट हैव द 8 क्रोमोसोम। और फर्दर इसके बाद यहाँ से फिर एक डिवीज़न होता है, लेकिन हम पढ़ेंगे आगे कि ये डिवीज़न मियोसिस ना होकर माइटोसिस होता है, क्योंकि क्रोमोसोम्स का नंबर ऑलरेडी हाफ हो चुका है। फिर फर्दर ये और दोनों मिलकर फिर से अगर फ्यूज़ करेंगे तो फिर एक नए कंडीशन में 2n कंडीशन बना लेंगे। अब समझ आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? गैमीट हमेशा n होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और स्पोरोफाइट, स्पोर नहीं स्पोरोफाइट, वो हमेशा डिप्लॉयड कंडीशन होते हैं, मतलब 2n कंडीशन में दो न्यूक्लियस के फ्यूजन से बनते हैं। क्लियर? नाउ व्हाट विल हैपन? नाउ फर्दर दिस स्पोर divides by the meiosis division and produce the haploid spore. Haploid spore means this is the haploid spore. This is the haploid spore. Clear? और ये स्पोरोफाइट कैसा होगा? n कंडीशन का होगा। मैंने 8 क्रोमोसोम लगा दिए ना, 8 मतलब 8 मतलब ये n और n मैंने कर दिया, और ये क्या था? 2n कंडीशन, मतलब ये 8 + 8 का कंडीशन था। समझ आ गया? ओके। नाउ इन द लाइफ साइकिल ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट, दिस गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट कंडीशन और फेजेस अल्टरनेट विथ ईच अदर इन द जनरेशन। क्लियर? सो हियर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्लांट्स दैट शोज द डिफरेंट लाइफ साइकिल्स। इट मीन्स किसी प्लांट में गेमेटोफिटिक स्टेज बहुत लंबा होता है और उसके कंपैरिजन में स्पोरोफिटिक स्टेज बहुत छोटा होता है। रहेंगे दोनों फेजेस, और इसी गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होना या गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होना, ये कहलाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्लियर? और यहाँ पर ये सपोज अगर मैं 100 में डिवाइड कर दूँ पूरी लाइफ साइकिल को, तो लगभग कभी कभार ऐसे भी होते हैं कुछ प्लांट्स में जो स्पोरोफिटिक स्टेज होता है वो लगभग 80 to 90% होता है, और 10% मतलब शॉर्ट टर्म के लिए क्या होता है? गेमेटोफिटिक स्टेज। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें स्पोरोफिटिक स्टेज बहुत छोटे के लिए होते हैं, 10 to 20% ऑफ द लाइफ साइकिल, और गेमेटोफिटिक स्टेज बहुत लंबा चलता है। तो ऐसे हम कहते हैं दिस हैव द गेमेटोफिटिक डोमिनेंट स्टेज और द स्पोरोफिटिक डोमिनेंट स्टेज। और किसी किस्म क्या होता है कि दोनों फेज अल्टरनेट करते हैं और दोनों लगभग इक्वल तो नहीं कह सकते, बट लगभग इक्वल लाइफ साइकिल को लेके चलते हैं। तो इसके ब्याह पर हमने पूरे लाइफ साइकिल को 3 भागों में डिवाइड किया: हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड द हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्लियर? इफ वी टॉक अबाउट द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मोस्टली एल्गीज में पाया जाता है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जनरली जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। क्लियर? अब यहाँ पर हम इसको ना पढ़ के सीधे हम आ जाते हैं डायग्राम पे। हम डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं।
हेप्लांटिक लाइफ साइकिल। यहाँ पर होता क्या है, इस लाइफ साइकिल में जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है सिंगल सेल से। ध्यान दीजिएगा, सिंगल सेल जाइगोट, सेल एक है लेकिन क्रोमोसोम्स का नंबर डिप्लॉयड है। क्लियर? तो वी कैन सी हियर दिस इज द जाइगोट, दैट इज द 2n कंडीशन। मतलब सेल तो एक है लेकिन सेल के अंदर क्या है, 2 न्यूक्लियस है, 2n फॉर न्यूक्लियस। क्लियर? सो द कंडीशन इज अ डिप्लॉयड बट सेल इज द सिंगल, एक ही सेल के अंदर दोनों न्यूक्लियस है। इज इट क्लियर? और इसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट। अब क्या होगा, ये जाइगोट जो होगा हम कह सकते हैं कि जो इस पूरे होल लाइफ साइकिल में जो स्पोरोफाइट होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता, मतलब अकेला नहीं रह सकता। तो होगा क्या, अब इस जाइगोट में जो 2n था इसमें होगा क्या, मियोसिस डिवीज़न। मैंने बताया था मियोसिस में क्या होगा, क्रोमोसोम्स का नंबर आधा हो जाएगा, जो ये 2n है ये कन्वर्ट हो जाएगा n और n में। मैंने बताया था अभी आपको, एक न्यूक्लियस एक सेल, ये डिवाइड होगा पहले जिसमें 2 न्यूक्लियस थे, अब ये एक न्यूक्लियस इसमें, एक न्यूक्लियस इसमें। तो जो ये कंडीशन था डिप्लॉयड का 2n का, अब ये n और n में कन्वर्ट हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर क्रोमोसोम का डिवीज़न हो चुका है तो अब अगला डिवीज़न माइटोसिस का होगा, मतलब यहाँ पर क्रोमोसोम्स का नंबर आधा नहीं होगा, बस सिर्फ क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीज़न हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा, n और n, n और n, इससे भी तो मतलब एक मदर सेल से हम देखेंगे 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और सब कैसे होंगे, हेप्लॉइड। तो वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, 1 मदर सेल, 2 डॉटर सेल, फर्दर डिवाइड इनटू 2 and 2। तो एक माँ से 4 डॉटर्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? और यही से स्टेज शुरू हो जाती है, जैसे हेप्लॉइड कंडीशन हुआ हम इसको क्या कहते हैं, गेमेटोफिटिक स्टेज। फर्दर ये स्पोर, अब स्पोरोफाइट नहीं कह रहा हूँ मैं, स्पोर कह रहा हूँ। अब ये स्पोर माइटोसिस डिवीज़न करेगा, तो यहाँ पर ऑलरेडी क्रोमोसोम्स का नंबर आधा हो चुका है, तो क्या कहलाएगा, गेमेटोफिटिक स्टेज। अब इस गेमेटोफाइट में क्या होगा, गेमिटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट। क्लियर? तो एक इधर एक इधर, और फर्दर इन दोनों के बीच में क्या होगा, फ्यूज़न होगा, और फ्यूज़न करने के बाद क्या होगा, सिंगैमी। फ्यूज़न ऑफ द गैमीट्स आर कॉल्ड द सिंगैमी, और सिंगैमी में फिर हम देखेंगे कंडीशन क्या हो जाएगा, 2n, और ये 2n क्या होगा, माइटोसिस डिवीज़न करेगा, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। ये जाइगोट डिवीज़न करके स्पोरोफिटिक कंडीशन को शो करता है। तो हम देख सकते हैं इस लाइफ साइकिल में ये पूरी, अगर हम 100% इस पूरे लाइफ साइकिल को हम 100 मान लें सपोज, तो वी कैन से नियरली 70% स्टेज इज द गेमेटोफिटिक, while this is the 30%. Is stage is called the sporophytic. So we can see here the gametophytic stage is the dominant here. The more of the time of the life cycle is consumed by the gametophytic stage. Clear? And the best example of this type of the life cycle forms in the various algae like the Volvox, Spirogyra, Chlamydomonas, etc. Now, in the second डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, अब वहाँ पर अगर गेमेटोफाइट स्टेज डोमिनेंट था तो यहाँ पर क्या होगा, डिप्लॉन्टिक में मतलब 2n कंडीशन। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वो स्टेज जहाँ पर डिप्लॉयड बॉडी या स्पोरोफिटिक बॉडी डोमिनेंट रहेगी, मतलब मोस्ट ऑफ द लाइफ साइकिल का जो मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम है वो कौन कंटेन करता है, डिप्लॉयड बॉडी या स्पोरोफिटिक। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा, हेयर द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट, मैंने बता दिया था आपको, और ये स्पोरोफाइट आगे ग्रो करेगा, लीव्स बनेगा, स्टेम्स बनेगा, दे हैव द क्लोरोफिल्स, सो दिस इज द फोटोसिंथेटिक एंड इंडिपेंडेंट फेज। वाई द इंडिपेंडेंट फेज, चूँकि ये स्पोरोफाइट के पास अपना खुद का ग्रीन पिगमेंट है, तो ये गेमेटोफाइट पर डिपेंड नहीं है अपने न्यूट्रिशन के लिए। सो दिस इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द प्लांट। अब यहाँ पर क्या होगा,
गेमेटोफिटिक फेज में क्या होगा, ये रिप्रेजेंट किया जाएगा एक सिंगल सेल से, बट हेप्लॉइड गेमेटोफाइट मतलब यहाँ पर क्रोमोसोम्स का नंबर आधा होगा। मैंने आपको बताया था ज़्यादातर जो एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें कैसा होता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, बट एक्सेप्शनली फ्यूकस इज एन एल्गी दैट पॉसेस द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल like the angiosperms and gymnosperms. So we can see here in the diagram, ये जस्ट अपोजिट है उसका। अब ये स्टेज है स्पोरोफिटिक स्टेज, यहाँ से लेके यहाँ तक कैसा स्टेज है, स्पोरोफिटिक, और यहाँ से लेके ये इतना फेज है आपका गेमेटोफिटिक। तो वी कैन सी दिस इज 30 एंड दिस इज द 70। ये ऑन एवरेज बांटा गया, ऐसा कोई फिक्स नहीं कि 70-30। क्लियर? ये तो हमने एज्यूम किया लगभग एक पूरे होल लाइफ का कितना परसेंट चलता है लगभग। ये हम देखेंगे यहाँ पर एक स्पोरोफाइट है और स्पोरोफाइट हमेशा 2n होता है। अब ये यहाँ पर डिवीज़न होगा, वी कैन सी हियर द डिवीज़न टेक्स प्लेस, दैट इज द मियोसिस। और मियोसिस के बाद क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है क्रोमोसोम्स का डिवीज़न होगा, न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा। तो जो 2n था कंडीशन वो किस में कन्वर्ट होगा, n में। क्लियर? और ये n क्या होगा, हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और इसी को हम क्या कहते हैं, गेमेटोफाइट। अब इस गेमेटोफाइट में क्या होगा, गेमेटोजेनेसिस बनेगा होगा, मतलब गेमेट का फॉर्मेशन होगा जो मेल या फीमेल होगा। यहाँ तक इतने लाइफ साइकिल को हम क्या कहते हैं, हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या गेमेटोफिटिक स्टेज। और इसके बाद जैसे दोनों गेमेट्स का, मेल और फीमेल गेमेट्स का फ्यूजन हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, सिंगेमी। और सिंगेमी हो तो यहाँ पर क्या हो गया, 2n कंडीशन। सो लाइफ साइकिल हेप्लॉइड बहुत कम थी और डिप्लॉइड लाइफ साइकिल सबसे ज़्यादा कंटेन करता है। फिर ये 2n आगे डिवाइड करेगा, जाइगोट बनाएगा, माइटोसिस डिवीजन करेगा, जाइगोट बनाएगा, और ये जाइगोट फर्दर चल पर क्या बनाएगा, बड़ा होके स्पोरोफिटिक स्टेज। और ये स्पोरोफिटिक कैसा होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, क्योंकि इसके पास खुद का लीव्स है, खुद का फोटो सिस्टम है, तो इट इज इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द प्लांट। आई होप नाउ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ इन द थर्ड, हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हेप्लोडिप्लॉन्टिक मीन्स एक वो ऑर्गेनिज्म, एक वो प्लांट जिसमें हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी रहती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी रहती है। कुछ प्लांट्स हैं जिनमें हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल डोमिनेंट होती है और कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल डोमिनेंट होती है। वो रेशियो 60-40 का चल जाता है ऑन एवरेज। क्लियर? तो हम देखेंगे ये किसमें पाया जाता है, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में। तो ब्रायोफाइट्स जो शो करता है वहाँ पर हमने पढ़ा था, दे पोसेस द और डिपेंडेंट the dominant phase of the life cycle is the gametophyte, while in case of the pteridophytes the dominant phase is the sporophyte. So we can see here in the, if we talk about the bryophytes, so the gametophytic stage is the larger. दिस स्टेज इज द लार्जर। और लाइफ साइकिल एक जैसी ही रहेगी, वही सेम गेमिट मियोसिस स्पोरोफाइट या स्पोर्स में या स्पोरोफाइट में डिवीज़न का होना, मियोसिस डिवीज़न, गैमिट्स का बनना या स्पोर्स का बनना, वो स्पोर्स आगे चल के क्या बनाएगा, गेमेटोफाइट बनाएगा। और ये सब पूरी कंडीशन कैसा चल रहा है, हेप्लॉइड कंडीशन। और फर्दर वो गेमेटोजेनेसिस करेगा, इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गेमिट। और जैसे ही मेल और फीमेल गेमिट का फ्यूजन हो जाता है तो क्या बन जाता है, जाइगोट, जो 2n होगा। तो सिंगेमी से लेकर आगे स्पोर के बनने तक, स्पोर के बनने के पहले तक ये कैसा होगा, स्पोरोफिटिक स्टेज। और मियोसिस के बाद से लेकर सिंगेमी से पहले तक का स्टेज क्या होगा, गेमेटोफिटिक स्टेज। और इसको मैं उलट दूँ तो किसका लाइफ साइकिल हो जाएगा, टेरिडोफाइट्स का। टेरिडोफाइट्स में कौन सी लाइफ साइकिल ज़्यादा डोमिनेंट होती है, स्पोरोफाइट, मतलब वो ज़्यादा टर्म की रहती है। 60% टेन्योर का स्पोरोफिटिक होता है और 40% होता है वो गेमेटोफाइट होता है। क्लियर? सो आई होप you like the videos. Now this is the last topic of the chapter 3rd. Now in 4th chapter we will study about the animal kingdom. Thank you class.